Today we are going to continue with our chapter which we started last time, that is life processes in living organisms part 2. Now in the last lecture we learnt about reproduction. We learnt what is reproduction. We learnt about the difference between asexual and sexual reproduction, and we also learned that what are the different types of asexual reproduction we see in unicellular organisms. What were they? They were binary fission, multiple fission and budding. Now today we will be studying about asexual reproduction in multicellular organisms. Asexual reproduction in multicellular organisms. So last time I had told you all what are the different asexual reproduction which we see in multicellular organisms. They are fragmentation, the second one was regeneration, then here also we had budding, then there was spore formation, and lastly there was vegetative propagation. Okay, so these are the 5 types of asexual reproduction which we see in multicellular organisms, and we will be studying about each one of them in detail. So let us begin with the first one, that is fragmentation. Okay, so now what do we mean by the word fragmentation? The word itself tells us it is something associated with fragment. Fragment मतलब क्या? कोई भी चीज़ का एक छोटा सा टुकड़ा, एक छोटा सा पार्ट, like a fragment of a cloth, मतलब वो कपड़े का एक छोटा सा टुकड़ा. So what is fragmentation? यहाँ पे भी किसी चीज़ के टुकड़े हो रहे हैं. Now fragmentation का example I had told you all is Spirogyra. Okay. Now Spirogyra का जो structure होता है, it is somewhat like this. Okay, it looks somewhat like this and it is green in color. Now क्या होता है, जब भी conditions adequate होती है, जब भी ये Spirogyra को proper nutrients, proper water वगैरह मिल रहा होता है, तो what this Spirogyra does, it starts dividing itself into fragments. वो अपने आप को छोटे छोटे parts में divide करने लगता है, ठीक है, and जो एक और हर एक fragment फिर separate होते जाता है, और जो हर एक फ्रैगमेंट सेपरेट हुआ वो एक नए स्पायरोगायरा में डेवलप होता है. जैसे ये फ्रैगमेंट एक नए स्पायरोगायरा में डेवलप हो जाएगा, ये फ्रैगमेंट एक नए स्पायरोगायरा में डेवलप हो जाएगा. तो व्हाट हैपेंड व्हेन द कंडीशंस वर एडिक्वेट, दैट इज व्हेन अप्रोप्रिएट न्यूट्रिएंट्स वर अवेलेबल, व्हेन एडिक्वेट अमाउंट ऑफ वाटर वाज अवेलेबल, दिस स्पायरोगायरा डिवाइडेड इटसेल्फ इनटू वेरियस फ्रैगमेंट्स and each fragment developed itself into a new Spirogyra. So this was fragmentation. Is that clear? Okay. Now the second one is regeneration. What is the second one? Regeneration. अब regenerate करना मतलब किसी भी चीज़ को फिर से बनाना. To generate, what do you mean by the word generate? Generate मतलब बनाना and re मतलब repeat again, right? तो किसी भी चीज़ को फिर से बनाना मतलब regeneration. अभी छिपकली सबने देखी होगी, right? All of you all must have seen a lizard. सो इफ़ यू ऑल मस्ट हैव नोटिस, अगर हमको छिपकली दिखती है और अगर आप उसको ज़ोर से किसी चीज़ से उसकी टेल पे मारते हो तो उसकी टेल सेपरेट हो जाती है.
बट विद इन फ्यू डेज ओनली यू विल सी अगेन उसकी टेल बन जाती है, सो वो टेल रीजनरेट हो जाती है। तो लिजर्ड के पास ये कैपेबिलिटी है कि वो अपने ऑर्गन्स को रीजेनरेट कर सकती है, सो दैट इज पार्शियल रीजेनरेशन, यानी कि वो पूरी की पूरी लिजर्ड खुद से रीजेनरेट नहीं हो सकती, बट वो अपने पार्ट्स को फिर से रीजेनरेट कर सकती है। नाउ एक ऑर्गेनिज्म है जिसका नाम है प्लानेरिया। क्या नाम है? प्लानेरिया। इट लुक्स समवॉट लाइक दिस। सो ये प्लानेरिया को अगर मैं दो पार्ट्स में कट कर दूं, दो पार्ट्स में डिवाइड कर दूं, तो एवरी पार्ट इज केपेबल ऑफ रीजेनरेटिंग इनटू अ न्यू प्लानेरिया। अब मैंने तो इसको काट दिया, मैंने तो इसको खत्म कर दिया, बट ये खत्म होगा नहीं। ये जो दो अलग अलग पार्ट्स है, इस पार्ट से एक और प्लानेरिया बनेगा एंड इस पार्ट से एक और प्लानेरिया बनेगा। सो द एंटायर ऑर्गेनिज्म regenerated itself. So this is regeneration, that is the capacity to generate the entire organism again. Is that clear? Now third one was budding. Now we also studied budding in unicellular organisms, right? We studied budding in asexual reproduction and unicellular organisms. Unicellular organisms में budding का example क्या था? It was yeast. And multicellular organisms में budding का example है hydra. क्या example है? hydra. अभी प्रोसीजर दोनों में सेम ही है। क्या होता है? हाइड्रा का स्ट्रक्चर इज समवॉट लाइक दिस, ओके, इट हैज मेनी हेयर टेंटिकल्स लाइक दिस। सो ईस्ट में भी क्या हुआ था? सबसे पहले वो ईस्ट के ऊपर एक बड डेवलप हुआ था, तो सेम हाइड्रा में भी वैसे ही होगा। ये हाइड्रा के ऊपर एक बड डेवलप होगा, ये बड के पास भी अपने टेंटिकल्स रहेंगे एंड दिस बड विल रिमेन अटैच्ड टू द पेरेंट हाइड्रा। वो अपने सारे न्यूट्रिएंट्स जो भी उसको अपनी ग्रोथ के लिए चाहिए वो ये पेरेंट हाइड्रा से लेता रहेगा एंड फाइनली जब वो मैच्योर हो जाएगा तो वो पेरेंट हाइड्रा से सेपरेट होके एक अपना अलग इंडिविजुअल हाइड्रा। तो सेम जैसे ईस्ट में हुआ था, पहले बड बना जो अपने पेरेंट से अटैच था एंड आफ्टर द बड हैज मैच्योर्ड इट विल नाउ डेवलप इनटू अ न्यू हाइड्रा। सो दिस वाज बडिंग। Now next one is spore formation. अभी स्पोर फॉर्मेशन का एग्जाम्पल है म्यूकर। नाउ म्यूकर क्या होता है? सबने ब्रेड देखा है, अगर ब्रेड को ज्यादा दिन तक रखते तो यू ऑलमोस्ट हैव ऑब्जर्व्ड ब्रेड के ऊपर एक ग्रीन कलर का सब्सटेंस आना शुरू हो जाता है, एक ग्रीन कलर का सब्सटेंस आके उस पर सेटल होता है। सो दैट ग्रीन सब्सटेंस इज नथिंग बट म्यूकर, ठीक है। तो म्यूकर का स्ट्रक्चर इज समवॉट लाइक दिस। ये उसकी स्टॉक होती है और उसके पास एक बड़ा ऐसा सैक होता है और ये सैक को हम लोग बोलते हैं स्पोरेंजियम। क्या बोलते हैं? स्पोरेंजियम। और ये स्पोरेंजियम के अंदर छोटे छोटे स्पोर्स प्रेजेंट होते हैं। क्या प्रेजेंट होते हैं? स्पोर्स। सो इसके अंदर बहुत सारे स्पोर्स होते हैं स्पोरेंजियम के अंदर। नाउ व्हेनेवर द कंडीशंस आर फेवरेबल, जब ये आसपास न्यूट्रिएंट्स है, वाटर है, क्लाइमेटिक कंडीशंस फेवरेबल है, तब क्या होगा? ये जो स्पोरेंजियम है दिस विल ब्रेक ओपन एंड ऑल द स्पोर्स विल कम आउट। ये सारे स्पोर्स बाहर आएंगे, ग्राउंड पे गिरेंगे और हर एक स्पोर से फिर एक नया स्पायरोगायरा बनते जाएगा। ऑल द स्पोर्स विल कीप गिविंग राइज टू वन न्यू म्यूकर प्लांट, ठीक है। तो क्या हुआ? म्यूकर के पास स्पोरेंजियम है, इनसाइड द स्पोरेंजियम देयर आर मेनी स्पोर्स। सो whenever the conditions are favorable, the sporangium will burst and the spores will come out and each spore will now give rise to a new mucor. This was spore formation.
and then the last form is vegetative propagation. What is the last form? Vegetative propagation. अभी what is vegetative? Vegetative मतलब it happens through the vegetative parts of a plant. What are the vegetative parts of a plant? वो parts जो एक नए part को form कर सकते हैं, which are capable of forming a new part. जैसे कि roots होते हैं, stem होते हैं, plant का fruit होता है, ठीक है. Now vegetative propagation का example है potato. Now सबके घर में potato आता होगा, सबने देखा होगा पोटैटो के ऊपर इससे छोटे छोटे येलो कलर के कुछ स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं एंड दे आर कॉल्ड एज द आईज ऑफ द पोटैटो. और ओके, सो दीज स्मॉल बर्ड्स विच आर प्रेजेंट ऑन पोटैटो आर कॉल्ड एज द आईज ऑफ द पोटैटो. अभी दिस ईच आई, अगर ये पोटैटो को हमने ग्राउंड से सेपरेट नहीं किया होता और ये अभी भी ग्राउंड में होता, सो दिस ईच आई वॉज केपेबल ऑफ गिविंग राइज टू एन एंटायर न्यू पोटैटो प्लांट. ओके, बट नाउ सिंस वी आर सेपरेटेड ऐसा नहीं होगा, बट अगर ये अभी भी अटैच होता, सो दिस ईच आई वॉज केपेबल ऑफ गिविंग राइज टू अ न्यू पोटैटो प्लांट. वैसे ही वेजिटेटिव प्रोपोगेशन का एक और एग्जाम्पल है ब्रायोफाइलम. नाउ ये ब्रायोफाइलम का जो लीफ होता है, ये लीफ का ये जो मार्जिन होता है वहाँ पे छोटे छोटे बर्ड्स होते हैं एंड ये हर एक बर्ड से एक नया ब्रायोफाइलम का प्लांट बन सकता है, एक नया ब्रायोफाइलम का लीफ बन सकता है. सो वेजिटेटिव प्रोपोगेशन में क्या हो रहा है, जो भी प्लांट के वेजिटेटिव पार्ट्स है, जैसे कि उसका जो फ्रूट है, उसका जो लीफ है, उससे हमको न्यू प्लांट बन रहा है. ओके, दैट इज व्हाई इट इज. सो नाउ वी हैव टोटली कंप्लीटेड विद एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन. सो नाउ लेट अस बिगिन विद सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. ओके, सो लेट अस रिवाइज फर्स्ट. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या क्या था? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में 2 पेरेंट्स आर इन्वॉल्व, 1 मेल पेरेंट 1 फीमेल पेरेंट. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में फ्यूजन ऑफ गैमेट्स होता है, राइट? फ्यूजन ऑफ मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो ऑफस्प्रिंग होता है इट इज सिमिलर टू पेरेंट, आइडेंटिकल नहीं, अपने पेरेंट से मिलता जुलता होता है बट सेम नहीं होता है. फिर नेक्स्ट पॉइंट क्या था? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में लेस नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग्स आर प्रोड्यूस, कम बच्चे होते हैं. एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज अ स्लो प्रोसेस. ओके, नाउ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में 2 स्टेप्स होते हैं. द फर्स्ट स्टेप इज गैमेट फॉर्मेशन and the second step is fertilization. कौन से 2 स्टेप्स होते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के? गैमेट फॉर्मेशन एंड फर्टिलाइजेशन. तो व्हाट इज गैमेट फॉर्मेशन? गैमेट मैंने बताया क्या होता है. गैमेट इज द रिप्रोडक्टिव सेल. ओके, द रिप्रोडक्टिव सेल विच इज सेपरेट इन मेल एंड सेपरेट इन फीमेल इज कॉल्ड एज गैमेट. जैसे ह्यूमन बींग्स में द मेल गैमेट इज स्पर्म एंड द फीमेल गैमेट इज ओवम. तो हाउ डू दीज गैमेट्स फॉर्म? These gametes form by a process of meiosis. We learnt in the last chapter about cell division and the types of cell division, mitosis and meiosis. तो what is meiosis? Meiosis में क्या होता है? एक haploid cell, एक diploid cell divide होके 2 haploid cells बनाता है, right? So one diploid cells divides to form 2 haploid cells. मतलब जो क्रोमोसोम नंबर है वो हाफ हो जाता है, उसको हम लोग बोलते हैं meiosis. तो ये गैमेट्स जो होते हैं ये भी हैप्लॉइड स्ट्रक्चर्स होते हैं, इनके पास हाफ द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स ही होते हैं. सो गैमेट्स आर द रिप्रोडक्टिव सेल्स, दे आर फॉर्म बाय द प्रोसेस ऑफ मियोसिस. दे आर हैप्लॉइड सेल्स विच हैव ओनली हाफ द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स. इज दैट क्लियर? देन द नेक्स्ट स्टेप इज फर्टिलाइजेशन. फर्टिलाइजेशन में क्या होता है? फर्टिलाइजेशन में देयर इज फ्यूजन ऑफ गैमेट्स. क्या होता है? फ्यूजन ऑफ गैमेट्स. तो क्या होगा? मेल गैमेट जो भी है, ह्यूमन बीइंग है, प्लांट है, एनिमल है, जिसमें भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है, उसके एक मेल रहेगा एक फीमेल रहेगा. तो एक मेल गैमेट रहेगा एक फीमेल गैमेट रहेगा. तो द मेल गैमेट विल फ्यूज विद द फीमेल गैमेट
टू फॉर्म जाइगोट. ओके, तो क्या होगा, मेल गैमेट विल फ्यूज विद द फीमेल गैमेट टू फॉर्म जाइगोट. अभी ये मेल गैमेट हैप्लॉइड रहेगा, फीमेल गैमेट हाइप्लॉइड रहेगा, तो हैप्लॉइड हैप्लॉइड जॉइन होकर क्या बनेगा, डिप्लॉइड. ठीक है, तो क्या हुआ, अभी फर्टिलाइजेशन के बाद मेल गैमेट यूनाइटेड विद द फीमेल गैमेट टू फॉर्म द जाइगोट. अभी मेल गैमेट के पास अपने अलग क्रोमोसोम्स होंगे, अपना अलग जेनेटिक मटेरियल रहेगा, और फीमेल के पास अपने अलग क्रोमोसोम्स होंगे और अपना अलग जेनेटिक मटेरियल रहेगा. तो ये जो जाइगोट है इसको कॉम्बिनेशन मिल गया ना, मेल पेरेंट से भी अलग अलग फीचर्स मिले, फीमेल पेरेंट से भी अलग अलग फीचर्स मिले, तो ये जाइगोट में एक अलग वैरायटी प्रोड्यूस होगी. जैसे हमें हमारी मदर से थोड़े फीचर्स मिले हैं, फादर से थोड़े फीचर्स मिले, इसीलिए हम एक न्यू वैरायटी है जो प्रोड्यूस हुए. तो इसी वजह से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वी गेट न्यू वैरायटीज. इस प्रोसेस को हम बोलते हैं जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन. क्या बोलते हैं, जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन. मतलब जो भी जेनेटिक मटेरियल है उसका रिकॉम्बिनेशन हो रहा है, यानी कि वो फिर से कंबाइन हो रहा है और एक नया प्रोडक्ट बन रहा है. सो व्हाट आर द 2 स्टेप्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, गैमेट फॉर्मेशन एंड फर्टिलाइजेशन. गैमेट फॉर्मेशन इज द फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स थ्रू द प्रोसेस ऑफ मियोसिस, and fertilization is the fusion of male gamete and female gamete to form a zygote, and this leads to genetic recombination and development of variation. All right, so now we will be studying sexual reproduction in plants also and sexual reproduction in human beings also. So let us first begin with sexual reproduction in plants. Now प्लांट्स में जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है वो होता है फ्लावर. क्या होता है, फ्लावर. सो बिफोर वी बिगिन विद सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सबसे पहले लेट अस अंडरस्टैंड द स्ट्रक्चर ऑफ अ फ्लावर. अभी फ्लावर के पास ना 4 मेन वॉल्स होते हैं, 4 मेन पार्ट्स होते हैं, एंड वो 4 पार्ट्स कौन कौन से हैं, कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम. कौन से 4 वॉल्स है फ्लावर के, सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो है कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम. तो कैलिक्स जो होता है, जो फ्लावर का ग्रीन पार्ट होता है ना, इफ यू सी, जो फ्लावर होता है उसके पास एक ग्रीन पार्ट होता है, दैट इज कॉल्ड एज कैलिक्स. कोरोला मतलब जो फ्लावर के पेटल्स होते हैं, जो पंखड़ियाँ होती है एक फूल की, दैट इज कॉल्ड एज कोरोला. वो सारे पेटल्स मिलके क्या बनाते हैं, कोरोला. एंड्रोशियम इज द मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट एंड गाइनोशियम इज द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट. So what are the 4 main walls of a flower? Calyx, corolla, androecium, gynoecium. Calyx is the green part of a flower. Corolla is made by all the petals of a flower. Androecium, male reproductive part of a flower. Gynoecium, female reproductive part of a flower. Okay. Now let us understand with the help of a diagram the structure of a flower. ओके, सो द स्ट्रक्चर ऑफ अ फ्लावर इज समवॉट लाइक दिस. तो ये जो आपको दिख रहे हैं, दीज आर द पेटल्स ऑफ अ फ्लावर. तो ऑल द पेटल्स ऑफ अ फ्लावर टुगेदर मेक द कोरोला. अभी ये नीचे जो पार्ट होता है, इट इज द ग्रीन पार्ट ऑफ अ फ्लावर एंड दैट मेक्स द कैलिक्स. नाउ ये जो नीचे पार्ट होता है विच गिव सपोर्ट टू द फ्लावर, दैट इज कॉल्ड द पेडिकल. What is it called? Pedicle.
नाउ ये जो पार्ट है, दिस लॉन्ग फिलामेंट लाइक पार्ट, दैट इज कॉल्ड नथिंग बट फिलामेंट। एंड इसके ऊपर जो ये राउंड पार्ट है, इसको हम लोग बोलते हैं एंथर। और ये एंथर और फिलामेंट दोनों को मिला के हम बोलते हैं स्टेमेन। क्या बोलते हैं? स्टेमेन। नाउ ये जो ऊपर राउंड पार्ट आप देख रहे हैं, इसको हम लोग बोलते हैं स्टिग्मा। क्या बोलते हैं? स्टिग्मा। ये जो लॉन्ग ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, इसको हम लोग बोलते हैं स्टाइल। और ये जो अंदर जो स्ट्रक्चर बीच में गोल बड़ा सा स्ट्रक्चर है, दैट इज द ओवरी। एंड ये स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी तीनों मिला के बनता है कार्पेल। क्या बनता है? कार्पेल। एंड बहुत सारे स्टेमन्स मिलके बनाते हैं जो हमारे फ्लावर का मेल पार्ट है, दैट इज द एंड्रोशियम। ठीक है, बहुत सारे स्टेमन्स यूनाइट होके बनाएंगे एंड्रोशियम, एंड बहुत सारे कार्पेल्स यूनाइट होके बनाएंगे हमारे फ्लावर का फीमेल पार्ट, दैट इज द गाइनोशियम. So this is the pedicle of the flower which gives support to the flower. This is stigma, style, ovary. ये स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी तीनों यूनाइट होके बनाएंगे कार्पेल. एंड ये पूरा फीमेल पार्ट है, स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी सब ने यूनाइट होके कार्पेल बनाया. और बहुत सारे कार्पेल्स यूनाइट होके फीमेल पार्ट बनाएंगे जिसको हम लोग बोलते हैं गाइनोशियम. ये मेल पार्ट है जो बनता है एंथर और फिलामेंट से. एंथर और फिलामेंट यूनाइट होके बनाएगा स्टेमेन, एंड स्टेमेन बहुत सारे यूनाइट होके क्या बनाएंगे, मेल पार्ट जो कि है एंड्रोशियम. एंड ये जो पेटल्स वाला पार्ट है दैट इज द कोरोला. सो दिस इज द डायग्राम ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ अ फ्लावर. ओके, so now you need to know about certain terms. Now we studied about pedicle, right? वो जो नीचे स्टॉक थी जो फ्लावर को सपोर्ट दे रही थी उसको हम लोग बोलते हैं पेडिकल. सो वो वाले फ्लावर्स जिनके पास ये पेडिकल होता है उनको हम लोग बोलते हैं पेडिसिलेट. क्या बोलते हैं? पेडिसिलेट. जिनके पास ये पेडिसिल होता है. एंड जिनके पास ये पेडिसिल नहीं होता है उनको हम लोग बोलते हैं सिसाइल. व्हाट डू वी कॉल दोज फ्लावर्स? सिसाइल. So flowers which have a pedicel are called as pedicellate, and flowers which do not have a pedicel are called as sessile. Okay, so this is the difference between pedicellate and sessile flowers. Now we learned that the male reproductive part of a flower is androecium and female part कौन सा है? gynoecium. अभी अगर एक फ्लावर के पास एक ही फ्लावर में एंड्रोशियम भी है, गाइनोशियम भी है, दोनों एक ही फ्लावर में है, सो दैट फ्लावर इज कॉल्ड एज अ बायसेक्सुअल फ्लावर, क्योंकि इट हैज गॉट बोथ द सेक्सेस इन इट, राइट? मेल ऑल्सो एंड फीमेल्स ऑल्सो. सो दैट इज अ बायसेक्सुअल फ्लावर. और हो सकता है कि एक फ्लावर के पास या तो सिर्फ एंड्रोशियम है या तो सिर्फ गाइनोशियम है, तो उसको हम लोग बोलते हैं यूनिसेक्सुअल फ्लावर. ठीक है. बायसेक्सुअल फ्लावर का एग्जाम्पल है हिबिस्कस, जो शू फ्लावर का प्लांट होता है वो. एंड यूनिसेक्सुअल फ्लावर का एग्जाम्पल है पपाया. ठीक है. सो इफ अ फ्लावर हैज बोथ एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम देन इट इज कॉल्ड अ बायसेक्सुअल फ्लावर. एग्जाम्पल इज द फ्लावर ऑफ हिबिस्कस. And if it has only androecium or only gynoecium, then it is called as a unisexual flower. Example is papaya. So this was about the structure of. Studied about the structure of flower. अभी फ्लावर में हम लोग सबने देखा एक ओवरी थी बीच में, राइट? सो अभी हम लोग पढ़ेंगे कि वो ओवरी का स्ट्रक्चर कैसे होता है. लेट अस स्टडी द स्ट्रक्चर ऑफ ओवरी. तो ये ओवरी ऐसे ओवल शेप में होती है, वो तो नेम से ही हम लोग समझ गए. अभी यहाँ पे ये कुछ इस तरह से होता है. ठीक है. सो ये जो सेंटर में होता है सबसे, ये है हमारा न्यूक्लियस. सेंटर में न्यूक्लियस है, ऊपर 3 सेल्स है. सो जो सेंटर वाला सेल है ना ऊपर, वो है एग सेल. व्हाट इज दैट? एग सेल. एंड
ये जो साइड में 2 सेल्स है उसको बोलते हैं सिनर्जिड्स। क्या बोलते हैं? सिनर्जिड्स। एंड ये जो नीचे 3 सेल्स है दे आर एंटीपोडल सेल्स। क्या बोलते हैं इनको? एंटीपोडल सेल्स। तो बीच में न्यूक्लियस है, ऊपर एक सेंटर में एग सेल है और 2 साइड में सिनर्जिड्स है और नीचे 3 एंटीपोडल सेल्स है। अभी ये जो एग सेल है दैट इज द मेन फीमेल रिप्रोडक्टिव सेल। ये जो दोनों सिनर्जिड्स है ये एग सेल को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं। एंड दीज एंटीपोडल सेल्स आर जस्ट एक्सेसरी सेल्स, इनका कुछ फंक्शन नहीं है। सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ ओवरी। So before we understand how sexual reproduction occurs in plants, you should know all this कि मेल पार्ट क्या है, फीमेल पार्ट क्या है एंड ओवरी का स्ट्रक्चर कैसा है। So now in the next lecture we will study how sexual reproduction is occurring in the plant. That is we will study about double fertilization and why it is called double fertilization, that also we will learn. So what did we learn in today's lecture? We learnt about asexual reproduction in multicellular organisms. So what were the forms of asexual reproduction in multicellular organisms? There was fragmentation, there was regeneration, spore formation, budding and vegetative propagation. Then we started with sexual reproduction. Sexual reproduction में कौन से 2 steps होते हैं? Gamete formation and fertilization. Gamete formation मतलब formation of gametes और वो कैसे होता है? Meiosis से। और fertilization मतलब union of male gamete and union of female gamete which leads to the formation of zygote. Then we started with the structure of a flower. Flower के 4 मेन इंपॉर्टेंट वर्ड्स क्या है? सबसे पहला कैलिक्स। कैलिक्स मतलब जो ग्रीन पार्ट है फ्लावर का। फिर कोरोला, कोरोला मतलब जो फ्लावर के पेटल्स है। देन एंड्रोशियम जो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है एंड गाइनोशियम जो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। ठीक है, एंड्रोशियम किससे बनता है? स्टेमन से, और स्टेमन एंथर और फिलामेंट से। गाइनोशियम किससे बनता है? कार्पेल से, और कार्पेल स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी से बनता है। वो फ्लावर्स जिनके पास वो नीचे की स्टॉक होती है पेडिकल, उनको हम लोग बोलते हैं पेडिसेलेट फ्लावर्स, एंड जिनके पास वो स्टॉक नहीं होती उनको बोलते हैं सेसाइल फ्लावर्स। देन वो फ्लावर्स जिनके पास एंड्रोशियम गाइनोशियम दोनों है दे आर कॉल्ड एज बाइसेक्सुअल फ्लावर्स। एग्जाम्पल इज हिबिस्कस। एंड जिनके पास या तो सिर्फ एंड्रोशियम है या सिर्फ गाइनोशियम है दे आर कॉल्ड एज यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स। एग्जाम्पल इज पपाया। थैंक यू।